So it's last week of December, to be precise 26, 2021, and finally upgraded to 27-inch monitor from small laptop screen. Now upgraded to screen because obviously projecting small screen of a laptop to the monitor helps you give more room and clarity in editing, but obviously not the speed, I guess. So for that I already had plans to get a system from very long time, but as I have budget issues, so plan things sequentially instead all at the same time. So first screen arrived, then cabinet, then later PC parts and so on. But yes, before that I have made more than 100 videos and 1 year of content with small laptop. So finally on 8th January 2022, all the PC parts came, assembled by our friend. But now finally I have this full-fledged PC setup. This is what my desk setup looks like in the daytime. And in the night time. Also, this video will cover my complete PC details dedicated to video editing and gaming. On my desk mainly I have my complete PC, which includes one screen, one CPU cabinet, a Logitech headphone and keyboard, along with a portable speaker, a controller so I can play games if I want, a calendar, a succulent plant and a candle for some sort of ambience when I'm working at night time. इसके अलावा थोड़ी और पर्सनल चीज़ें हैं जो मुझे डेली वर्क में यूज़ आती है, like Apple Pencil and along with that a tab and most importantly a audio recording setup जो बहुत ही सिंपल वे में मैंने सेट किया हुआ है, जस्ट अ बूम पोल आर्म जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है CPU के बैक साइड से इन द माइक स्लॉट. Actually, I have a better quality mic which is Zoom H1N, but I mainly use that for my motovlogging purpose when I'm recording externally. So talking about the second most important unit, which is monitor on my desk, it's a 27-inch from BenQ, provides 16:9 full HD resolution. Important यहाँ पे ये है कि ये IPS display है, it's not TN or VA. In this I'm getting actually 3 HDMI ports, which is very useful. Apart from that, it's a bezel-less design with, I can say, many modes like BI mode, e-paper mode, eye reminder mode, blocking the blue light mode, which does it very well. जहाँ तक movement की बात करूँ तो फ्रंट में ही ये मूव करता है, along the vertical, horizontally ये मूव नहीं होता. And yeah, there are like 4 screws behind this, like behind the back of the monitor, which you can connect it with a height adjustable arm mount, so you don't have to keep this on your desk. So it was a deal for me getting a screen and a keyboard together with a cost of just costing 13 or 14,000. Talking about the Logitech headphones, it's a G435 wireless gaming headset. Why I found this very helpful, very useful, we'll talk in the later part of the video, but currently this is my daily driver. I'm using this for my video editing, for playing games. I'm using this for playing mobile games like BGMI. This is just insane. This is perfect. I mean, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल और एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, but this headphone is mind blowing. डेस्कटॉप में कनेक्ट करने के लिए आपको एक डोंगल मिलता है जो आपको CPU के पीछे लगाना पड़ता है. सो 1 की के साथ आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, 1 स्विचेबल की के साथ आपके मॉनिटर से कनेक्ट हो जाएगा. देन आई हैव अ पोर्टेबल स्पीकर विच आई हार्डली यूज़, बट जब भी यूज़ करता हूँ तो जस्ट सॉन्ग्स के लिए. इसके साथ मैंने केबल लगा रखा है, ऑक्स केबल, जो अगेन CPU से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो. बट आई वुड से माई मॉनिटर साउंड क्वालिटी इज़ बेटर देन दिस स्पीकर्स. तो जो मॉनिटर है मेरे पास BenQ का, वो 5 वॉट के स्पीकर्स हैं and they have really crystal sound. And apart from that, I have a desk mat which is reversible. One side there is a dark blue sort of color and on the other side it's like a mustard yellow. Mat is very nice. Actually मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही माउस पैड की, but now after like continuously hours of editing, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे एक थोड़ा cushion लेना ही पड़ेगा अपने रिस्ट के नीचे. But mat is really nice. Rest I have other peripherals like card readers,
memory cards, few wire holders like for cable management and wire management. So that's pretty much. So let's hop onto the bike and talk about all the PC parts along with all the peripherals details. तो चलाते चलाते बात करते हैं. But before that, also I would like to add the whole workflow process. Workflow से मेरा मतलब है कि मैं इस PC जो मैंने build किया है, I haven't built this PC for gaming, even though I used to be a gamer and still I love gaming. But जो मेरा काम होता है इससे mainly वीडियो एडिटिंग के तौर पे, उसमें मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ. सो सॉर्ट ऑफ अ वर्क फ्लो. तो जो मेरा मेनली जो वीडियो शूट होता है, ईदर इट्स फ्रॉम GoPro और सम अदर कैमरा. लाइक as I've said, I have two cameras, point and shoot and DSLR. Both are very old. Along with that, I use my own mobile for mainly like horizontal video shooting. तो उनको मैं किस तरीके से ट्रांसफ़र करता हूँ अपने सिस्टम में. सो द होल वर्क फ्लो प्रोसेस. जहाँ तक GoPro की बात है, वो डायरेक्टली GoPro के ही USB वायर से CPU पे कनेक्ट करके डायरेक्ट शेयरिंग. इट्स वेरी सिंपल. डायरेक्ट वो आपको MP4 फाइल फॉर्मेट में पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा. देन आई हैव ऑडियो फाइल्स. आई रिकॉर्ड एक्सटर्नली. सो येस, आई हैव टू रिकॉर्ड इन माई सेल फोन और ऑडियो रिकॉर्डर. उसके लिए माइक्रो USB मैंने कुछ वायर्स ऑलरेडी डेस्क पे सेट किया हुआ है. तो आई जस्ट कनेक्ट माई ऑडियो रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली टू द वायर्स एंड डायरेक्टली मुझे मिल जाता है. Then apart from recording, I have external cameras जिनका डायरेक्टली मेमोरी कार्ड निकाल के I have a card reader में डालो और मेमोरी कार्ड का डेटा कॉपी कर लो. So that's the basic process जो डेटा ट्रांसफ़र का मेरा होता है via GoPro, via extra cameras, and then we have my mobile phone. मोबाइल फ़ोन में मैं ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ एंड डायरेक्टली मैं ड्राइव से डाउनलोड कर लेता हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम डेटा ट्रांसफ़र बचा है वीडियो एडिटिंग प्रोसेस. और जो वीडियो एडिटिंग प्रोसेस होता है वो मेनली मेरा एडोब प्रीमियर प्रो में होता है. तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अपना वीडियो पूरा एडिट करता हूँ. वीडियो एडिटिंग करने के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ऑडियो रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मैंने बताया आई हैव एक्सटर्नल माइक और जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इधर आई रिकॉर्ड ऑन एडोब ऑडिशन और ऑडेसिटी. सो दिस इज़ द होल माई वर्क फ्लो प्रोसेस जो मैं सेटअप से कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई नॉर्मली प्ले पेस. बचपन से खेलता आया हूँ, लाइक जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था. सो पेस मैं खेलता हूँ. आई प्रेफर पेस ओवर फीफा सिंस फीफा 2009. गेमिंग की बात करूँ तो या आई डू प्ले BGMI ऑन माई OnePlus 9R जो गलती कर दी लेके. सो दैट्स द होल वर्क फ्लो प्रोसेस जो मैं मेनली एडिट करता हूँ. क्या गाड़ी चला रहा है भाई ये इंसान. सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया. दैट्स अ केबल मैनेजमेंट और वी कैन से माई डेस्क सेटअप. अभी जो आपको मेरा डेस्क सेटअप दिख रहा है, इट्स एक्चुअली जो लोग इस हेलमेट डूड पे नए हैं उनको आइडिया नहीं होगा, बट जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पहले मैं अपने फादर के घर रहता था. तो वहाँ पे मेरा रूम प्रॉपर सेटअप था. ब्रिक बाय ब्रिक मैंने वहाँ पे सेट किया था. तो आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस तरीके का मेरा सेटअप था. ये मेरा नया घर है और मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ और यहाँ पे मैंने वापस नया स्टार्ट किया है, अपना सेटअप किया है पिछले लास्ट 1-2 महीने से. तो जब मैंने ये घर लिया सो आई डिसाइडेड कि ये रूम ऑफिस सेटअप होगा. तो इसमें एक लेफ़्ट वॉल है आप देख सकते हो, एक राइट वॉल आप देख सकते हो और ये सामने की वॉल देख सकते हो. सो दिस इज़ नॉर्थ डायरेक्शन. तो एज़ पर द व्यू जो आपको क्लियरली कांच का मिल रहा है, मैंने कहा टेबल यहीं पे होना चाहिए. और दूसरा ये नॉर्थ साइडेड है. आप कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी ऑफिस वर्क करते हो तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं वो वास्तुशास्त्र, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए आप जब बैठो काम करो. तो मैंने कहा यही डायरेक्शन में है. बट प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे कोई सॉकेट नहीं है. तो सॉकेट नहीं होने की वजह से मुझे काफ़ी कंफ्यूज था कि यहाँ पे मैं टेबल रखूँ कि नहीं. बट मेरा मन था कि मेरे को डेस्क यहीं पे रखना है. तो मैंने क्या किया,
मेरे पास एक एक्सटेंशन ऑलरेडी था, मैंने 2 एक्सटेंशन कर दिए, एक और ख़रीद लिया और एक लेफ़्ट में लगा दिया, एक राइट में लगा दिया। तो आप देख सकते हो जो लेफ़्ट में लगाया है वहाँ पे जो सॉकेट में प्लग्स लगे हैं वो हैं मॉनिटर के, CPU के और जो RGB लाइट है उसके। राइट में जो एक्सटेंशन लगा हुआ है वो जाता है सीधा मेरे शेल्फ पे। वहाँ पे मैंने एक सेटअप, एक बॉक्स जैसा लिया जिसके अंदर मैंने एक एक्सटेंशन रखा हुआ है। वहाँ पे जैसे कि चार्जिंग के लिए आप कह लो, हैंड्स फ्रीज हो गए, वॉचेस हो गया, टैबलेट्स हो गए, मेरी एप्पल पेंसिल है वो मैंने चार्ज कर लिया, या फिर आप कह लो वहाँ पे कोई भी छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे चार्ज करनी है तो वो मैं यहाँ पे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो ये 2 जगह पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड डाले थे और काफ़ी हद तक इन एक्सटेंशन बोर्ड ने मेरा हेल्प किया। तो समहाउ दिस इज़ हाउ माई सेटअप लुक्स लाइक। तो आई थिंक दिस इज़ द एंड पार्ट। तो इसमें अगर मैं आपको केबल मैनेजमेंट की बात करूं, वायरिंग मैनेजमेंट की बात करूं, इनिशियली मैंने वायरिंग ही किया था स्टार्ट करना जब मैंने नया PC लिया था। तो वायरिंग मैंने इस तरीके से करी है कि एक भी वायर का लूज़ एंड आपको नहीं दिखाई देगा। टायर में कुछ इशू है क्या? नो इट्स फाइन। ओके, यहाँ बंगलोज हैं। नहीं, टायर तो ठीक है बॉस, मुझे लग रहा है पंचर वंचर हुआ है। आई थिंक वो ग्रेवल है ना, स्लिप हो रहा होगा गाड़ी। वैसे भी इसकी ग्रिप बहुत बेकार है यार। सो आई वाज टॉकिंग, तो पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो मैंने केबल मैनेजमेंट ही किया था। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से उस थोड़े से थिकनेस में मैंने पूरी वायरिंग को इकट्ठा करके और वेलक्रो स्ट्रैप से डबल टेप यूज़ करके पूरा फिट किया है। यहाँ पे कुछ 2 एक्स्ट्रा वायर्स जो आपको दिख रही होंगी, ये रिसेंटली मैंने ऐड किया है, इसको भी मैं भी सेट कर देने वाला हूँ। तो प्रॉपर्ली क्लीन सेटअप मैंने किया है कि एक भी वायर अगर आप टेबल के नीचे देखोगे तो आपको वायर दिखने को नहीं मिलेगी। सो देसी जुगाड़ किया है और कुछ नहीं, कि थोड़ा सा क्लीन लुक आए। आप जब काम करने बैठो तो सामने कुछ ज़्यादा दिखाई ना दे। जो रात को मैं बैठता हूँ तो मुझे सामने जो होता है कुछ काम करने के लिए, दैट्स ओनली द कैंडल जो एक अच्छा एम्बियंस देता है। देन ऑल आई हैव एप्पल पेंसिल, जो कभी कभार मैं मीट में होता हूँ तो मुझे कुछ प्रेजेंट करना होता है या फिर कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है, तो आई यूज़ पेंसिल ऑन माई टैब। देन आई हैव अ स्पीकर, वो भी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं अपना BenQ का मॉनिटर स्पीकर यूज़ करता हूँ। तो मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल भराया है, अराउंड 10 लीटर। यहाँ पे उसकी माइलेज भी निकाल लेते हैं। प्रीटी सिंपल सा मेरा डेस्क सेटअप था, जो मुझे ज़रूरत थी वही मैंने चीज़ें ली हैं, जैसे कि कार्ड रीडर हो गया, एक हेडफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया। देन आई हैव फ्यू USB वायर्स जो मैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करता हूँ। तो अभी सिर्फ मैं PC पार्ट्स की बात करूँ जो सिर्फ बचा है, तो उसमें जो मैंने प्रोसेसर लिया है मैंने लिख ही लिया है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, और मैं ग्राफिक भी मैं आपको शो कर दूँगा। और ये सारे जो आइटम्स हैं PC पार्ट्स, मेरा जो डेस्क पे जो चीज़ें पड़ी हुई है, छोटी मोटी जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। PC के 80 to 90% पार्ट्स जो हैं वो मैंने लोकली मंगवाए हैं, जिसमें GST लग के आता है। तो बिल भी मेरे पास है, मैं उसका प्राइस भी बता दूंगा। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं वो भी आपको लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक आइडिया आ जाएगा, आपको ये सेम चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका PC कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, वी हैव CPU AMD Ryzen 7 5800X। मदरबोर्ड की बात करूं तो इट्स MSI X570 गेमिंग प्लस। रैम की बात करूं 16 GB DDR4 कॉर्सर का। हार्ड डिस्क 512 GB SSD। ये क्या है? SMPS की बात करो, इट्स फ्रॉम कूलर मास्टर 550 वाट। देन वी हैव फ़ैन जो AIO यूनिट होती है वो कूलर मास्टर का ही है आई गेस, ARGB ML240L। देन विंडोज़ मैंने ओरिजिनल डाली है 11 Pro। हार्ड डिस्क या विंडोज़ का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया है। हार्ड डिस्क 2 TB WD की। स्क्रीन BenQ का मैंने आपको बताया। माउस कीबोर्ड फ्रॉम लॉगिटेक, ऑल्सो हेडफोन्स फ्रॉम लॉगिटेक। तो अब हेडफोन हटा दो,
स्क्रीन हटा दो, माउस हटा दो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसका कॉस्ट अराउंड मेरे को 1,14,000 का पड़ा है इंक्लूडिंग विंडोज़। 13,000 स्क्रीन का ऐड कर दो जिसमें कीबोर्ड फ्री आया था, और 6,000 अराउंड हेडफोन का ऐड कर दो, तो अराउंड 1,33,000 ऑलमोस्ट में मेरे को पूरा सिस्टम पड़ा है मेरा वीडियो एडिटिंग सेटअप। सो रैम मेरे को 32 GB बहुत ही ओवर लगा कि इतना ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मेन काम होता है इट्स लाइक सर्फिंग हो गया, जो सेकंड मेन काम है। पहला काम है एडिटिंग का है, और थोड़ा बहुत कभी मीटिंग्स हो गए या कुछ गूगल मीट हो गया, और कभी कभार गेमिंग कर लेता हूँ। सो गाइस दैट वाज द होल PC कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। मैं आपको बोलूँगा कि हो सके जब आप अगर फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रहे हो तो आप लोकल ही ख़रीदो। आप ये जो मैंने डिटेल्स लिखवाई है ना, अगर आपका ये बजट है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये डिटेल्स को एक पेपर में लिख सकते हो और वो आप लोकली ऑर्डर दे सकते हो। ऑनलाइन मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ना तभी मंगाओ जब आपको असेंबल करना आता है। मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा या मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट वो सब नहीं लेना था। मेरे को था कि बंदा आए करके जाए मस्त सा, और बंदा मेरे को मेरे पहचान का था, मेरे ऑफिस का बंदा है, तो उससे मैंने ये पूरा काम करवाया था। तो एज आई सेड, अगर आप नए हो ये पार्ट्स आप मतलब नोट कर लो और आप ये ऑर्डर कर सकते हो अगर आपका ये बजट है तो। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि यही पार्ट्स आप ऑनलाइन ख़रीदते हो ना तो आपको डिस्काउंट मिलता है, सस्ता पड़ता है। बट मैंने कहा यार वो 2-3 हज़ार में बचाऊँ, उससे अच्छा स्ट्रेस को साइड में रखते हैं और किसी और से पूरा काम करवा देते हैं। तो आदमी आया था, उसने पूरा सेटअप किया। और कुछ चीज़ें क्या होती है ना, कभी कभार बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मदरबोर्ड और जो आपका GPU यूनिट है, ग्राफिक प्रोसेसर है, वो कंपैटिबल है कि नहीं। आपका जो CPU यूनिट है, मैं CPU यूनिट से मुझे याद आया कि मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो बाहर का जो डब्बा है वो कहाँ का है। ये थर्मल इनटेक का है और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं आपको मॉडल नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। मेरे को कूलर मास्टर वो RGB में नहीं जाना था, मुझे एक वाइट लुक चाहिए था, एक क्लीन मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए था। कूलर मास्टर का जो एक कूलिंग यूनिट है उसकी लाइट हो रही है, इस CPU कैबिनेट में कोई लाइट नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सस्ता था, तो मैंने इसको, इतना भी सस्ता नहीं था बट इट वाज ऑफ अ गुड क्वालिटी, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कई चीज़ें ऑफलाइन की थी बट मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन भी करी है। तो ऐसे ही है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। और जहाँ तक मैं हाय सेल्फ़ी मैंने ले ली है, तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे लो, क्योंकि मैंने लेने के महीने पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था द होल रिसर्च प्रोसेस कि मुझे कौन सा प्रोसेसर लेना है, कौन सी स्क्रीन लेनी है। तो काफ़ी रिसर्च हुआ करने के बाद किसी और को फॉलो ना करके खुद के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना, उसके बाद जाके मैंने ये पूरा सेटअप क्रिएट किया। तो आई होप आप लोगों को ये सेटअप पसंद आया हो। और इतना हाई-फाई सेटअप तो नहीं है बट ये है कि काम हो जाता है। कैसे निकाल रहा है बंदा गाड़ी। तो आप कह सकते हो कि अराउंड 1,30,000 के अंदर मुझे पूरा सेटअप पड़ा है इंक्लूडिंग विंडोज़। अगर मैं एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा कूलिंग यूनिट और विंडोज़ पे अगर मैं खर्चा नहीं करता तो मैं इसको डेफिनेटली अराउंड 1,00,000 में निपटा देता। और ग्राफिक्स कार्ड मैंने लिया है तो मैं CPU के कूलर से मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं था, तो मुझे एक्स्ट्रा एक कूलिंग यूनिट चाहिए थी, तो उन सब में खर्चा हुआ अराउंड 133 हुआ। ऐसे वीडियो जनरली मैं बनाता नहीं हूँ, मुझे बनाने नहीं थे, बट काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। काफ़ी लोगों को अपना नया PC भी बनाना है, काफ़ी लोगों को अपना नया गेमिंग सेटअप भी मतलब तैयार करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने इस वीडियो को भी ले आते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी एक सेटअप क्रिएट किया है। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट। आज संडे था, काफ़ी अंधेरा हो गया है और मुझे वर्कआउट करने जाना है। अभी पेट्रोल भी भराया है और मैं माइलेज निकालना भूल गया। अभी 5 किलोमीटर चली है तो मैं माइलेज निकाल लेता हूँ। सो गाइस दैट्स इट, दैट्स all in this video. I will see you in the next motor vlog, sort of a helmet dude motor vlogs, not these kind of desk setup and all. Killing spree for the blue team! Now, reloading!
No mercy. Watch out. Watch out. Yeah, cover me. Nice shot. Yeah. Killing spree for the blue team. No mercy. Watch out. Yeah. Kill. Reloading. बंदे मारने ही नहीं दे रहे। अरे 15 के 3 3 पॉइंट का खेल